Hi everyone, myself Divya Tamrakar and today I am going to explain chapter number 16, Who Will Do This Work. In this chapter we learn about some peoples who belong that community which have only one single job, the cleaning job. Why should they do this? So some peoples are having interview with them and they tell us the reason. So let's start. Have you seen such scenes around you? So student, this is some pictures of some person who are having the cleaning job and they clean our city. Here a person is cleaning a land area, a person who is cleaning the stairs, 2-3 persons are cleaning the drainage system over, and a lady and a person cleaning a narrow street. So why they do this job? Our friend spoke to some staff who do cleaning job. Here some of this thing they told us. They asked a question, since when you have been doing this work? About 20 years since I completed my studies. Why did you not study further? You could have got some other job. You need money for studies, and even after that most of people continue to do this kind of work. Again, what do you mean? Since our great grandfathers' times or even before that, most people of our community have been doing this work. Even after getting a college degree, our people do not get any other kind of job, so they have to do this work. What is that so? That is the way it is in the entire city. All the people who do this kind of work are from our community. It has always been so. कुछ लोगों ने उन कम्युनिटी के लोगों से पूछा जो सिर्फ क्लीनिंग की जॉब करते हैं कि आप लोग ये जॉब कब से कर रहे हैं. उस पर्सन ने बताया अबाउट 20 ईयर्स सिंस आई कंप्लीटेड माई स्टडीज़. तो उसने पूछा कि और आगे की स्टडी के लिए आप बाहर क्यों नहीं जाते जिससे आपको कोई दूसरी इससे बेटर जॉब मिल जाए. उसने ये आंसर दिया कि स्टडीज़ के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और चाहे आप कोई सी भी डिग्री ले आए, पढ़ाई कर ले, आपको कंटिन्यू यही करना पड़ेगा. तो वो थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि इतना पढ़ने के बावजूद उसको फिर भी क्लीनिंग क्यों करना पड़ेगा उन लोगों को. उसका क्या मतलब है पूछा उसने. तो उसने बताया कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर और उससे पहले से भी उनकी कम्युनिटी यही वर्क करती आ रही है. कॉलेज की डिग्री मिल जाने के बाद भी उनको कोई और अदर जॉब नहीं मिलती. इस वजह से उन्हें यही जॉब करना पड़ता है. इसका क्या मतलब हुआ. तो उसने कहा कि तो अब कुछ नहीं, सारे सिटीज़ में हमारी कम्युनिटी के जो पर्सन्स हैं वो यही जॉब करते हैं, उनको यही जॉब मिलती है, कोई और जॉब नहीं मिलती चाहे वो कितना भी पढ़ाई कर लें. So students, here is the picture of your page number 149. It is the street picture of a street where different kinds work of being done in it. So you have to list only 5 things which has happened in this picture. इस पिक्चर में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं. आपको कमेंट सेक्शन में मुझे 5 चीज़ें बतानी है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कौन क्या कर रहा है. लिस्ट ऑफ एनी 5 ऑफ दिस and send it in a comment section. Okay. Do you think that anyone has ever tried to change this situation? Which situation? The situation is that a particular community people's having only cleaning job.
So do you think that anyone has tried to change this situation? Yes, many people have tried. People are trying even today. But it is not easy to change this. One such person was Mahatma Gandhi. Gandhiji had a friend, Mahadev Bhai Desai. Mahadev Bhai's son Narayana also stayed with Gandhiji when he was young. This incident is from Narayana's book. सो इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश की, अभी भी कोशिशें जारी है, लेकिन सबसे ज़्यादा कोशिश की थी महात्मा गांधी ने। वो एक ऐसे पर्सन थे जिन्हें ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी और इन्होंने उसे बदलने की बहुत कोशिश की। गांधी जी के एक फ्रेंड थे जिनका नाम था महादेव भाई देसाई। उनका एक छोटा बेटा भी था जिनका नाम था नारायणा, और वो गांधी जी के साथ उन्हीं के आश्रम में रहता था जब वो छोटा था। So he shared an incident in his book, which is published in his book, and we will read here this incidents. Remembering those days when Narayana means Babla was 11-year-old, he was staying in Gandhiji's Sabarmati ashram. Like everyone else in the ashram, he had to do various kind of work. One of his job was to teach the guests how to clean the toilet. In those days, the toilet were not what we know today. There used to be holes under which baskets were kept. People sat on the holes. Later, the basket had to be lifted by hand to be emptied. नारायणा जब 11 years का था तब वो गांधी जी के साथ उनके साबरमती आश्रम में रहता था। वहाँ पे सभी लोगों को अपना काम खुद करना पड़ता था। इवन उसका एक जॉब ये था कि जो गेस्ट आ रहे हैं उनको ये सिखाना कि हाउ दे क्लीन देयर टॉयलेट्स। सो उस वक्त वैसे टॉयलेट नहीं हुआ करते थे जैसे आजकल होते हैं। उस वक्त एक होल हुआ करता था, उसके नीचे बास्केट रख दिया जाता था। जब टॉयलेट हो जाता था तो वो बास्केट को खुद हाथ से उठाकर सारे मटेरियल वेस्ट प्रोडक्ट को फेंकना पड़ता था और उसको क्लीन करके वापस वहाँ रखना पड़ता था। सो इट वॉज द यूजुअल प्रैक्टिस दैट पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी वुड डू दिस वर्क, बट इन गांधी जी आश्रम एवरी पर्सन हैड टू कैरी द बास्केट टू द कंपोस्ट पिट एंड एम्प्टी इट देयर। नो वन हैड एक्सक्यूज फॉर दिस टास्क, not even the guest. Narayan Bhai remember how some people used to try to avoid this work. Some even left the ashram because of this. So वो कम्युनिटी जो सिर्फ क्लीनिंग जॉब करती है उनके लिए ये काम बहुत इजी हुआ करता था और वो वही करती थी। बट गांधी जी के आश्रम में ये अलाउड नहीं था। सबको अपना काम खुद करना पड़ता है। सो वहाँ पे जो आपने टॉयलेट किया है उसको बास्केट को खुद जाकर कंपोस्ट पिट तक, मतलब एक गड्ढा होता था वहाँ पे उसे डालते थे। उसको फेंकना है, खाली करना है और उसको वॉश करके वापस रखना है। इस चीज़ के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं कर सकता था, इवन जो गेस्ट आते थे वो भी नहीं। नारायण भाई को याद है कि कैसे लोग इन चीज़ों से बचते थे, अवॉइड करते थे वो एक चीज़ करना, और कुछ तो आश्रम छोड़कर ही चले जाते थे। Some year later, Gandhiji went to stay at a village near Wardha in Maharashtra. Gandhiji, Mahadev Bhai and others started to clean the toilets in the village. They did this from some month. One morning, a man coming from the toilet saw Mahadev Bhai. He pointed to him and said, "There is a lot of dirt over there. Go and clean that." When Babla saw this, he was very angry. He thought the villager felt that this is not their work. This was for Gandhiji and his team to do. He asked Gandhiji why this was so. Gandhiji replied, "Untouchability is a serious matter. Lot of hard work will be required to change this." कुछ साल पहले जब नारायण 11 का था तो उसके बाद कुछ साल बाद गांधी जी एक विलेज में गए महाराष्ट्र के पास में। वहाँ गांधी जी और महादेव भाई ने सारे टॉयलेट खुद क्लीन करने शुरू किए।
तो एक दिन जब वो टॉयलेट साफ़ कर रहा था तो महादेव भाई जो थे, जब टॉयलेट साफ़ कर रहे थे तो वहाँ पे एक आदमी आया और उसने पॉइंट किया कि यहाँ पे देखो कितना सारा डर्ट है और जाओ इसे क्लीन करो। बाबला भी वहीं पे था, मतलब नारायण वहीं पे था। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि ऐसा क्यों कहा, ये काम तो हर किसी को करना चाहिए। तो उसने इस तरीके से नारायण भाई को महादेव भाई को कैसे कहा। सो उसने जाके इस बारे में गांधी जी से बात की। तो गांधी जी ने कहा कि ये जो मैटर है अनटचेबिलिटी मीन्स जो लोग ये सारी चीज़ें क्लीन करते हैं उन्हें लोग पहले टच नहीं करते थे। सो उसे कहा जाता था अनटचेबिलिटी। ये एक बहुत सीरियस मैटर है, इनको ठीक करने के लिए बहुत वर्क करना पड़ेगा। So Narayan knew that the people who usually did this work were thought to be untouchable. He asked, what is the use if the village people do not change their thinking? They have become used to someone else doing this work from them. नारायण को पता था कि वो लोग जो ये सब चीज़ें करते थे वो बिल्कुल अच्छे नहीं माने जाते थे। सो उसने पूछा कि गांव के लोगों के बारे को ये चीज़ को लेके थिंकिंग कब बदलेगी, उन्हें ये कब पता चलेगा कि वो चीज़ें आपको खुद करनी है, उसके लिए कोई और पर्सन नहीं आएगा। सो गांधी जी रिप्लाइड, वाई डोंट यू थिंक द पीपल हु क्लीन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट? दे ऑल्सो लर्न अ लेसन। टू लर्न समथिंग इज़ लाइक लर्निंग अ न्यू स्किल इवन इफ़ इट इज़ अ क्लीनिंग जॉब। तो गांधी जी ने कहा, क्यों? ज़रूरी नहीं है जो लोग ये चीज़ें कर रहे हैं उनके लिए भी एक लेसन है, क्योंकि कोई भी चीज़ सीखना, एक नया कोई भी चीज़ करना एक नया लेसन ही होता है, चाहे वो क्लीनिंग की जॉब भी क्यों ना हो। सो लिटिल नारायणा वॉज नॉट कन्विंस्ड। ही अगेन आर्ग्यू, दोज हु मेक अ प्लेस डर्टी बट डू नॉट क्लीन इट शुड ऑल्सो लर्न लेसन। Gandhiji and Narayana continued to argue about this, but when he grew up, Narayana also followed the path of Gandhiji. गांधी जी का कहना ये था कि क्यों किसी दूसरे को हम लेसन सिखाएं, क्लीनिंग करना जॉब भी हमारे खुद के लिए एक नया लेसन होगा। तो नारायणा का कहना था कि क्यों जो लोग ये चीज़ें गंदी करते हैं, जगह गंदी करते हैं, उनके लिए भी तो ये लेसन होना चाहिए ना सीखने का कि खुद की जगह भी क्लीन करो। पर गांधी जी और नारायणा की ये बहस कंटिन्यू चली और जब नारायणा बड़े हो गए तो उन्होंने गांधी जी का ही पाथ लिया और वो उन्हीं के दिखाए गए रास्तों पर चले। एंड हियर इज अनदर चाइल्डहुड स्टोरी ऑफ बाबा भीमराव अंबेडकर। दिस स्टोरी इज ऑलमोस्ट 100 years ago. 7-year-old Bhim went to Goregaon in Maharashtra with his father to spend his holidays. He saw a barber cutting the long hair of a rich farmer's buffalo. He thought of his own long hair. He went to the barber and asked for a haircut. The barber replied, if I cut your hair, both my razor and I will get dirty. Oh, so to cut human hair can be dirtier than the cutting an animal's hair? Wondered little Bhim. Later this Bhim was known as Bhim Rao Baba Saheb Ambedkar. He became very famous across the world. Baba Saheb fought for justice for people like him. After India freedom, the constitution was prepared under the leadership of Baba Saheb. ये स्टोरी ऑलमोस्ट 100 ईयर पहले की है। जब भीमराव 7 ईयर के थे तब वो अपने फादर के साथ गोरेगांव महाराष्ट्र में छुट्टियां मनाने गए थे। वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक बार्बर बहुत अमीर आदमी के बफेलो की पूंछ काट रहा था। सो अचानक से उनको अपने भी लंबे लॉन्ग हेयर्स की याद आई। सो उन्होंने हेयर्स को कहा कि क्या आप मेरे हेयर्स भी कट करेंगे? तो बार्बर ने कहा कि नहीं, अगर मैं कट करता हूँ तुम्हारे हेयर तो मेरा रेज़र और मैं दोनों गंदे हो जाएंगे। सो भीमराव को ये आश्चर्य लगा कि क्या ह्यूमंस के हेयर कट करना ज़्यादा गंदा है एज़ कंपैरिजन टू कटिंग एन एनिमल्स हेयर। फिर बाद में ये भीमराव जो अंबेडकर है, इन्हें भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से जाना गया। ये पूरे भारत में, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस हुए क्योंकि ये उन लोगों के लिए लड़े जो कि ये अनटचेबिलिटी वाले इसमें आते हैं।
जिन्हें लोग छूना पसंद नहीं करते थे, जिन्हें लोग छूने से पाप मानते थे, इन सब के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। और जब इंडिया फ्रीडम हुआ, इंडिया को फ्रीडम मिली, तब उन्होंने इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान, जैसे किसी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कौन सा चीज़ कितना कड़ा उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि इन चीज़ों में। सो ये सारी चीज़ें बाबा भीमराव अंबेडकर ने ही लिखी। A conversation in school, the reality today। कुछ स्कूलों में अभी भी जो ये अनटचेबिलिटी वाला रूल है ये चल रहा है। सो इसके बारे में एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन हुआ बिटवीन हेतल एंड मीना। I am Hetal and this is Meena. We both study in class 3. What all do you do in school? We clean the ground. Do all children clean? No, not at all. We also have to clean the toilets. We do it on different days. I clean on Monday, she does on Tuesday, and she on Wednesday. All the children from our community do this. We have to carry 20 buckets of water for this. We have to sweep and wash. Why only you? Why not all the children? Only we have to do. If we don't, we get better. सो यहाँ पे हेतल और मीना 2 स्टूडेंट्स हैं जो आज भी इस कम्युनिटी वाले रूल्स जो है अनटचेबिलिटी से अब तक भी बाहर नहीं निकले हैं। उनको उनके स्कूल में अपने स्कूल के टॉयलेट और ग्राउंड भी साफ़ करने होते हैं, क्योंकि वो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जहाँ ये होता है। और एवरीडे इनका एक शिफ्ट होता है, जैसे मंडे मीना टॉयलेट क्लीन करती है, ट्यूसडे हेतल, वेडनेसडे कोई और, थर्सडे कोई और, फ्राइडे कोई और सैटरडे कोई और। सो उस कम्युनिटी के सारे बच्चे स्कूल में भी यही वर्क करते हैं, और अगर न किया जाए तो उन्हें इसके लिए डांट पड़ती है। सो इस तरीके की जो अनटचेबिलिटी की जो रूल्स है ये अभी भी कई जगह फॉलो किए जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। आज हमारा जो इंडिया है वो 75 ईयर्स हो गए हैं उसको फ्रीडम हुए। सो दैट रूल इज़ नॉट वैलिड फॉर द पर्सन्स। वी आर ह्यूमन्स, वी आर इक्वल फॉर एवरीवन। So students, here your chapter number 16 will be completed, and here a small slogan or bhajan which is written by Mahatma Gandhi। वैष्णव जन तो तेरे कहिए, जे पीड़ पराई जाने से, पर दुखे अपमान सहे, जे मन अभिमान न आणी। इसका मतलब ये है कि जो कोई काम छोटा या बड़ा होता है ये कोई परफेक्ट लोगों के लिए या फिर एक ही लोगों के लिए नहीं होता। ये सभी लोगों का करना चाहिए, सारे कामों को सारे लोगों को करना चाहिए। और जो लोग ये अपमान सहते हैं या जिनको उनसे ऐसा कहा जाता है, उन्हें कैसा फील होता है, अगर आप ये फील करेंगे तो आपको भी पता चलेगा। मतलब सच्चा व्यक्ति वही है जो दूसरों की पीड़ा को समझता हो, दूसरों के दुख पर जब वो उपकार करे तो अपने मन में कोई अभिमान आने न दे। ये इसका मतलब हुआ कि सच्चा व्यक्ति वही है जो दूसरे की पीड़ा को समझता है। ज़रूरी नहीं है कि अनटचेबिलिटी सबके लिए हो, उन्हें कैसा फील होता है ये एक सच्चा आदमी समझता है, और जब वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो वो अपने में अभिमान नहीं करता, वो ये नहीं सोचता कि उसने कितना बड़ा काम किया है। So student, here your chapter number 16 is completed. I'll give a small homework for you, which is you also did in the comment section. You have to list the 5 of any of this work which is shown in this picture. For more videos, you have to like and subscribe my channel, and thanks for watching.